Hello students, this is my third video on the chapter derivatives. Let's start today. Tenth question. If 1 plus x raised to the power n is equal to c naught plus c1x plus c2x square plus so on plus cn x की power n, using derivatives prove that we have two parts here. First part is c1 plus 2c2 plus so on plus n into cn is equal to n into 2 raised to the power n minus 1, and the second part is c1 minus twice c2 plus thrice c3 plus so on plus minus 1 raised to the power n minus 1, cn is equal to 0. Okay, let's start. Here we have 1 plus x raised to the power n is equal to c naught plus c1x plus c2x square plus so on plus cn x raised to the power n. On differentiating this with respect to x, we get, on differentiating with respect to x, we get power 1 plus x raised to the power n minus 1 is equal to, and the derivative of c naught is 0 being a constant, c1 as it is, and the derivative of x is 1 plus c2 as it is, and the derivative of x square is 2x plus so on plus cn and x raised to the power n minus 1. We want this expression here. We can easily think this expression, it can be obtained by putting x is equal to 1 in this equation. To get this expression, we put x equal to 1 in this equation, put x equal to 1. We get n into 1 plus 1, 2 raised to the power n minus 1 equal to c1 plus 2c2 so on, and cn, it implies c1 plus 2c2 plus so on plus ncn is equal to n into 2 raised to the power n minus 1, and we get the answer of part number first. Okay, let's start part number 2. Again, we start from this equation. We have 1 plus n into 1 plus x raised to the power n minus 1 is equal to this. Can you tell me x को क्या substitute करें so that this expression may be obtained? Tell. What should be the value of x in this equation so that this expression may be obtained? It is obvious. If we put x equal to minus 1, we get this expression on the right hand side. Put
x equal to -1. We get n 1 minus 1 and -1 equal to c1 minus 1 minus 2 c2, so on n cn x minus 1 power n minus 1, or we get c1 minus 2 c2 plus so on plus minus 1 raised to the power n minus 1 into n into cn is equal to 0. Hence we got the part number 2 also. Okay, let's take next question. Number 11, it is if fx is equal to square root of x square plus 1, gx is equal to x plus 1 upon x square plus 1, and hx is equal to 2x minus 3. Then find f dash g dash x. It is from CBSE board paper. Okay, let's start. We see here hx is equal to 2x minus 3. Therefore, h dash x will be equal to only 2. Now we have to find this composition. Okay, let's start. F dash h dash के साथ में ये जो भी लिखा हुआ है, we treat it as x. g dash h dash x. see, h dash x की वैल्यू 2 है, यानी कि x की जगह पर हम कुछ भी पुट करें, आंसर विल बी अगेन इक्वल टू 2. से अगर आपसे मैंने कहा h dash 5, इसका वैल्यू भी 2 होगा. मैं आपसे कहता हूं h dash fx, इसका वैल्यू भी 2 होगा, बिकॉज h dash x is always equal to 2, whatever may be the value of x, and thus h dash g dash x, this will be equal to h dash g dash x, इसका वैल्यू होगा 2. मतलब h dash के साथ में जो मर्जी ये लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. सिंस h dash x is equal to 2 है, तो अब हमारा x ये हो गया है, तो thus h dash x it is equal to 2. So we write its value as 2. ये वैल्यू आपने निकाली है h dash g dash x. h dash is equal to 2 for every value of x. For every value of x, मतलब x की जगह पर कुछ भी लिखा हुआ हो, h dash is equal to 2 है, तो चाहे बेशक h dash के साथ में ये लिखा हो, इसका आंसर भी 2 ही होगा. Now we find f dash 2. fx is equal to x square plus 1 square root. Square root means half power. If we find f dash x, we write 1 by 2 x square plus 1 minus half into 2x, or we can write 2 will go with 2, and we are left with x upon x square plus 1 is square root. So thus f dash 2, we wanted, therefore f dash 2 means we are putting 2 for x.
put 2 for x, 2 upon 2 square 4, 4 plus 1 5, square root of 5. This is our answer. Okay, let's start. Next question. Differentiate 12 number. Differentiate tan inverse 1 plus sin x square root plus 1 minus sin x square root divided by 1 plus sin x square root minus 1 minus sin x square root where x belongs 0 to pi. This question is from CBSE board paper. Okay, let's start the question. It is a good question. एक अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है ये क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है x की इन वैल्यूज के लिए. अगर ये वैल्यूज, ये रेंज ना दी गई होती x की तो फिर हम इसका आंसर निकाल लेते एक सिंगल स्टेप के अंदर. लेकिन क्योंकि वो रेंज दे दी गई है 0 से लेकर पाई के बीच में, मतलब x हमारा होगा 0 to पाई, तो फिर देखते हैं कि इस रेंज का यहाँ पर क्या मतलब है और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. से y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट divided by 1 plus sin x square root minus 1 minus sin x square root 1 plus sin x square root. It can be written as, we know 1 is equal to cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus sin x is equal to 2 sin x by 2 cos x by 2 and square root of this. Here we have an identity a square plus b square plus 2ab. It is a plus b का whole square, a plus b whole square and square root of this. And we know कि जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो बाहर इसको निकालोगे आप मॉडुलस के अंदर निकालोगे cos x by 2 plus sin x by 2 मॉडुलस. बिकॉज स्क्वायर रूट से बाहर आके कोई भी चीज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्क्वायर रूट से आप कुछ भी बाहर निकालते हो तो उसका साइन लेके चलोगे ऑलवेज पॉजिटिव, और ये मॉड बता रहा है कि इसका साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव. लेकिन एक चीज देखिएगा, ये इंटरवल आपका है, आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, पाई से कम है, बट हियर वी हैव x by 2 on dividing by 2, तो वी गेट x upon 2 0.20 पाई अपॉन 2. मतलब ये जो हमारा एंगल है x by 2, ये एंगल हमारा 0 से ज्यादा है और पाई बाय 2 से कम है. मतलब ये एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल हमारा है. एंड वी नो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और साइन दोनों के साइन कैसे होते हैं, पॉजिटिव. एंड दस इस मोड के अंदर
जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है उस एक्सप्रेशन का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो thus we can remove mod here, we write simply cos x by 2 plus sin x by 2. Next, similarly we find 1 minus sin x square root. For 1 we write cos square x by 2 plus sin square x by 2, और ये माइनस sin x is 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 sin x by 2 cos x by 2 and square root of this. Again it is an identity, a square plus b square minus 2ab, a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे इसको तो आप इसको लिखोगे मॉडुलस ऑफ कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब मॉड हटने पर बाहर साइन क्या आएगा वो डिपेंड करेगा कि मॉड के अंदर साइन कैसा आ रहा है। अच्छा x बाई 2 हम देख रहे हैं, x बाई 2 हमारा है 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में, एंड वी नो दैट अगर एंगल हमारा 0 से लेकर इफ x बाई 2 0 से ज्यादा और पाई बाई 2 या उससे है कम, तो इस इंटरवल के अंदर cos की वैल्यू ज्यादा होती है देन sin। फॉर दिस इंटरवल वी हैव cos की वैल्यू sin की वैल्यू से ज्यादा होती है। ये बड़ी फिगर है और ये स्मॉल फिगर है, तो साइन कैसा आएगा प्लस, तो इसलिए मॉड हटाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मॉड के अंदर साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए मॉड हटने पर भी बाहर साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन वो इस इंटरवल के लिए खाली, तो आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। बट अभी तो आपने केवल एक ही इंटरवल लिया है, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक का तो रह गया अभी हमारा इंटरवल, तो उसे कंसिडर करते हैं। अगर x बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 4 से ज्यादा होगा और पाई बाय 2 से कम होगा, तो अब देखना पड़ेगा आपको पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में कॉस का वैल्यू साइन का वैल्यू से छोटा होता है, साइन बड़ा होता है और कॉस का वैल्यू छोटा होता है इस इंटरवल के अंदर। अगर हमारा एंगल, अगर हमारा थीटा पाई बाय 4 से ज्यादा है और इस पाई बाय 2 से है कम, तो कॉस का वैल्यू होगा छोटा और साइन का वैल्यू होगा बड़ा। ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू में से क्या माइनस कर रहे हो, बड़ी वैल्यू को, तो मॉड के अंदर साइन कैसा आएगा, माइनस। एंड एज ए रूल जो साइन मॉड के अंदर आता है मॉड हटने पर वही साइन तो बाहर लगाया जाता है, तो इसलिए अब मॉड हटाइए और बाहर साइन कैसा आएगा, माइनस। तो माइनस कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। बस यहां पर गलती करते हैं सारे बच्चे, स्टूडेंट्स इन इंटरवल का ध्यान नहीं रखते हैं, इन इंटरवल का, और वो इसको लिख देते हैं। ये इंटरवल का ध्यान यहां पे रखना था इस तरीके से। तो यानी कि अब आपके पास बनेंगे यहाँ पर दो केसेस, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे इन टू केसेस। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम तब व्हेन x बाई 2, व्हेन x बाई 2 का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा और पाई बाय 4 से कम या उसके इक्वल, तो फिर क्या आएगा, ये देखिए वी राइट y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, 10 इनवर्स। ये किसके बराबर था हमारा, ये हमारा इक्वल टू था कॉज, इसके बराबर था, ये इसके बराबर, ये हमारा इक्वल इसके, तो इसको लिखेगा कॉज x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 प्लस 1 माइनस साइन x का स्क्वायर रूट, ये रहा। इसकी वैल्यू
इस इंटरवल के लिए ये है, तो आपको इसकी जगह पर ये लिखना है, ना कि ये, बिकॉज इंटरवल अभी आपने चूज किया है ये वाला, तो आप लिखेंगे इस वैल्यू को। लिखिए cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाई cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, ये माइनस, ये रहा माइनस, और इसकी वैल्यू हुई है, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। नाउ दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स साइन 2 cos x बाई टू, 2 cos x बाई टू अपॉन 2 sin x बाई टू, 2 sin x बाई टू। इट इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाई टू। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी लेकर आइए आप इन टर्म्स ऑफ tan। इस कॉट को चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ tan। कैसे? देखिए, मैंने इसको लिखा tan इनवर्स cot x बाई टू होता है tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये किसके बराबर होगा? अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला था, वी नो tan इनवर्स tan थीटा, इसकी वैल्यू थीटा होती है, लेकिन ये होती है तभी व्हेन थीटा बिलोंग्स माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू के बीच में। तब अब ये थीटा हमारा, ये थीटा, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसकी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है या नहीं। कैसे चेक करूंगा? अभी देख लेते हैं। हमने जो यहां पर x बाई टू लिखा है, x बाई टू, उसकी रेंज ये है, तो देखिएगा बिकॉज x बाई टू का वैल्यू है 0 से ज्यादा, और अब ये ले लीजिए पाई बाय 4 से कम। आपको निकालनी वैल्यू इसकी, माइनस साइन चेंज कीजिए, सबका साइन चेंज कर रहा हूं तो ये होगा माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और ये 0। पाई बाई टू ऐड कीजिए सबके अंदर, सो दैट इसकी वैल्यू आ जाए। पाई बाई टू सब में ऐड किया, पाई बाई टू इसमें ऐड करोगे पाई बाई 4 आएगा, पाई बाई टू इसमें ऐड करोगे माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई टू इसमें ऐड करोगे, यानी कि ये जो हमारा एंगल आ रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा इस रेंज के अंदर है। देख लीजिए, ये जो हमारा एंगल निकल के आया, वो एंगल हमारा इस इंटरवल के अंदर है। तो क्योंकि ये एंगल हमारा इस इंटरवल के अंदर है, एंड दस ये बराबर होगा tan, ये इक्वल होगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इस बात का ध्यान नहीं रखते, वो सिर्फ इतना देखते हैं, इससे काटा इसको और इसकी जगह लिख दिया ये। बेशक कुछ क्वेश्चंस के अंदर सही भी हो सकता है और कई बार आप गलत भी हो सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिए इन सारी चीजों का भी। तो देखिए, फर्स्ट केस में आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट केस वी हैव कि जो हमारा y था वो y इज इक्वल टू आ गया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। बस अब डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, वी राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये हमारा आंसर तब आ गया है जब x का वैल्यू है 0, जब x बाई टू है 0 से ज्यादा और पाई बाई 4 या उससे कम। नाउ फॉर द सेकेंड ब्रांच के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड ब्रांच के लिए। तो फिर लिखिएगा केस टू में क्या है? केस टू के अंदर जो हमारा एंगल है x बाई टू का वैल्यू पाई बाई 4 से ज्यादा है और
π/2 से कम है। तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू, हेयर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, इसकी वैल्यू तो वही है, फिक्स है, cos x/2 प्लस sin x/2। लेकिन अब जो ये वाली एक्सप्रेशन है ये बराबर इसके है, क्योंकि इंटरवल आपने लिया है ये वाला, तो इसकी जगह अब आप लिखोगे, इसको लिखो, माइनस का साइन ओपन कर रहे हैं तो माइनस cos x/2 और माइनस माइनस प्लस sin x/2। इन डिनोमिनेटर वी हैव cos x/2 प्लस sin x/2, ये माइनस, लेकिन मुझे इसकी जगह लिखना है ये, तो ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और आगे cos x/2 माइनस sin x/2। Now this will be equal to 10 inverse, cos से कैंसिल cos, sin प्लस sin 2 sin x/2 डिवाइडेड बाई sin से sin 2 cos x/2। So we have 10 inverse 10 x/2 and thus it is equal, thus we have y equal to x upon 2, therefore we say dy upon dx is equal to 1 upon 2। तो स्टूडेंट्स ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज आपको रेंज दी हुई थी कि x की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रही है, तो आपने देखा दो ब्रांचेस के अंदर हमने इसको सॉल्व किया है। तो ध्यान से निकालिए जब x की वैल्यू आपको इस प्रकार से दी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x, और ये दिया है आपको कि x का वैल्यू माइनस π/2 से ज्यादा है और π/2 से कम है। साथ ही साथ एक कंडीशन और भी दी गई है कि a/b इंटू 10x का वैल्यू मोर देन -1 है। देखिएगा इसको डिफरेंशिएट करना हमने, वी राइट y इक्वल टू 10 इनवर्स। कैन यू टेल मी क्या किया जाए यहाँ पर कि एक फॉर्मूला बन जाए ट्रिग्नोमेट्री का? क्या करें यहाँ पर सो दैट कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाए हमारे पास IDF का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर ऊपर नीचे डिवाइड बाई b cos x कीजिए, b cos x से डिवाइड b cos x कीजिए, a cos x अपॉन b cos x, इस cos से cos गया, we get a अपॉन b, माइनस b sin x अपॉन b cos x, we get 10x, divided by this divided by this one plus this divided by this, तो we get a upon b 10x। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, we have 10 inverse a plus a x plus x minus y upon 1 plus x into y। अब इसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले थे, अब वो डिपेंड करते हैं x इंटू वाई को लेकर। एक फॉर्मूला तो ये था
अगर x इंटू वाई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इफ x इंटू वाई का वैल्यू -1 से ज्यादा है, देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और दो फॉर्मूले हमारे पास और भी थे इसके लिए, बट थैंक गॉड कि आपका यहां पर यही फॉर्मूला काम आ गया। कैसे देखिएगा, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, तो x इंटू वाई मीन्स a अपॉन बी इंटू 10x। अगर इसकी वैल्यू है -1 से ज्यादा, जो कि आपको दी हुई है कि इसकी वैल्यू है -1 से ज्यादा, x इंटू वाई इसका वैल्यू है -1 से ज्यादा, तो thus we can use this formula here, apply this formula, so we get tan inverse a upon b minus tan inverse 10x. Now we write it y is equal to tan inverse a upon b minus tan inverse 10x की वैल्यू होती है x के बराबर होती है, लेकिन अगर x हमारा हो इस रेंज के अंदर, थैंक गॉड x हमारा सही रेंज में दिया हुआ है, एंड दस ये हमारा इक्वल टू होगा x के, तो y हमारा ये आ चुका है, एंड दस वी फाइंड नाउ dy अपॉन dx, दिस विल बी इक्वल टू, एंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a अपॉन b 0, बट इसका डेरिवेटिव -1। आगे हमारे पास आंसर, एनी प्रॉब्लम देख लीजिएगा। तो ये जो साइड में ये इंफॉर्मेशन दी गई होती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, ये बताती है हमें कि हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे तो शायद बेटर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डालूंगा अपनी अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9312228080। आप अपने कोई भी डाउट्स मुझे इस नंबर के ऊपर भेज सकते हैं। जैसे मैं देखूंगा आपके डाउट्स, और जैसे मुझको टाइम मिलेगा मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।